Dear students, last year in physics question paper set number 55/6/3, there was a question number 26 of section C. In that question, we were asked that find the current in all the three branches of the given circuit. That means current through 2 ohm resistor, 1 ohm resistor, and again 2 ohm resistor at the bottom. To solve this type of question, this type of circuit using Kirchhoff's laws, you have to know the Kirchhoff's laws first. Already in the question, already it was asked that state Kirchhoff's laws. So you have to write the Kirchhoff's laws, both the laws, junction rule and loop rule. After writing the Kirchhoff's laws, then you have to draw the circuit. You have to draw the circuit. Draw a neat circuit. Then keep the naming. This is 5 volt, 2 ohm, 10 volt, 1 ohm, 2 ohm. Then name the branches A, B, C, D, E, and F. Then the next thing you have to do is to apply the Kirchhoff's junction rule in the different junctions. See here there are two junctions. This is a junction B and junction E. Always remember that we consider current coming out from the battery, that means cell, of the highest EMF. Here 10 volt is the highest EMF, so we can consider that a current I is coming out from 10 volt cell. If all the cells have same EMF, then you can consider current from any one of the cell. ये जरूरी नहीं है कि यहाँ से ही लेना पड़ेगा, कहीं से भी ले सकते हो, बट क्या होता है सबसे ज्यादा वैल्यू वाला जो सेल होता है वहां से हम लोग करंट को लेते हैं. We consider that current is flowing from positive plate of the cell having highest EMF, that is 10 volt. And when current flows through the junction B, it is divided into two parts. One part is going from B to A and another is going from B to C. So there are two exiting currents, and we consider that the current flowing from B to A is I1. Then current flowing from B to C will be I minus I1. Okay, I current आया है B junction में घुसा है, it is the incoming current, and the exiting current will be I1 and I minus I1. Okay, so that means the current flowing through 2 ohm resistor is I1, 2 ohm resistor at the top will be I1, and the current flowing through 2 ohm resistor at the bottom is I minus I1, and the current flowing through this 1 ohm resistor will be I. So we applied the first law of Kirchhoff. First Kirchhoff rule, that means junction rule. Then we will apply the second rule. Second rule is Kirchhoff's loop rule. Okay, so to apply the rule, loop rule in this circuit, we have two loops here. One loop is B, A, F, E, B. There are two loops. One loop is this,
B, A, F, E, B. No need to draw this line. And another loop is B, C, D, E, B. We can consider it in any direction, either clockwise or anti-clockwise. It is our choice. Okay, it is our choice. हमने किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं. हम लोग का मर्जी में होगा. But when we write the equations for the loop, then we must remember the sign convention, and we will follow the sign convention given in the NCERT book. So what were the sign conventions? The first convention was that sign conventions क्या था? फर्स्ट कन्वेंशन था कि जब current if we move in the direction of flowing current, if we move in the direction of current, the potential drop across a resistor is negative. This is the first sign convention according to NCERT book. अगर हमने जिस जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, अभी देखो करंट कौन सा डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, बी से ए जा रहा है, ए से एफ जा रहा है, एफ से ई आ रहा है, ई से बी आ रहा है. करंट जा रहा है बी ए एफ ई बी डायरेक्शन में, और हम लोग भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बी ए एफ ई बी सेम डायरेक्शन में जा रहा है. अगर हम लोगों का डायरेक्शन, हम लोग का जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने लूप को लिया है, सेम डायरेक्शन में अगर करंट भी फ्लो हो रहा है, तब क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, किसी भी रेजिस्टर का अक्रॉस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दिस पोटेंशियल ड्रॉप विल बी नेगेटिव, दिस विल बी माइनस बी. Okay, this will be minus. And if we move in the opposite direction, okay, if we move in the opposite direction, for example, अगर हमने ऐसे मूव किया होता, सपोज यहाँ ऐसे है, करंट इधर जा रहा है I1, और हम लोगों ने लूप को उल्टा डायरेक्शन में लिया, तब क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप IR विल बी पॉजिटिव. ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, हम लोगों ने जिस डायरेक्शन में लूप को कंसीडर कर रहा है, हम लोगों का लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अगर अपोजिट हुआ, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? पॉजिटिव होगा. और हम लोगों का डायरेक्शन, लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अगर सेम हुआ, तो करंट क्या होगा? सॉरी, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? नेगेटिव होगा. दिस इज द फर्स्ट साइन कन्वेंशन. देन व्हाट वाज द सेकंड साइन कन्वेंशन? अगर हमने किसी एक सेल या बैटरी का नेगेटिव से पॉजिटिव साइड में जा रहा है, कंसीडर कर रहा है, करंट अगर माने हम लोगों का डायरेक्शन, हम लोगों का लूप लेने का डायरेक्शन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव है, ठीक है, हम यहाँ हम लोग कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट का डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, देन ईएमएफ विल बी पॉजिटिव. अगर हमने उल्टा डायरेक्शन में मूव किया, सपोज ये सेल का हम लोगों ने ऐसे मूव किया, माने हम लोगों ने जिस डायरेक्शन में मूव किया, पॉजिटिव प्लेट को फेस किया, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट का डायरेक्शन में अगर गया, तो ईएमएफ को नेगेटिव लेना है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आवर मूवमेंट, आवर डायरेक्शन ऑफ टेकिंग लूप. हम लोगों ने लूप को जिस डायरेक्शन में लिया है, वो डायरेक्शन ये डायरेक्शन है. अगर ये डायरेक्शन में जाने का समय हम लोगों का डायरेक्शन में अगर सेल का पॉजिटिव प्लेट आ जाएगा, तो ईएमएफ को नेगेटिव लेंगे, और सेल का नेगेटिव प्लेट आ जाएगा, तो हम लोगों ने पोटेंशियल को पॉजिटिव लेंगे, ईएमएफ को पॉजिटिव लेंगे. समझ में आया ना? हम लोगों का डायरेक्शन में अगर किसी सेल का नेगेटिव प्लेट आ गया,
तो हम लोगों ने सेल का ईएमएफ को पॉजिटिव लिखेंगे, और अगर हम लोगों ने मूवमेंट करने का समय पॉजिटिव प्लेट मिल गया तो हम लोगों ने ईएमएफ को क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। दिस इज द सेकेंड साइन कन्वेंशन। सो ये दोनों साइन कन्वेंशन को यूज करके हम लोगों ने अभी ये सर्किट को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? अप्लाइंग Kirchhoff's loop rule in the loop। अभी लूप लेने का डायरेक्शन देखो, कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, बी ए एफ ई, अगेन बी, बी ए एफ ई बी। यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, देखो यहाँ से बी से ए गया, ए से एफ जाने का समय, अभी हम लोग बी से ए से एफ जा रहा है, और यहाँ निगेटिव प्लेट हम लोगों को मिल गया। अगर निगेटिव प्लेट मिलेगा तो ईएमएफ को लेना पड़ेगा पॉजिटिव, ठीक है। और हम लोगों का डायरेक्शन और करंट फ्लो होने का डायरेक्शन सेम है। I1 का डायरेक्शन और हम लोगों का लूप का डायरेक्शन सेम है, इसीलिए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 2 ओम रेजिस्टर विल बी -2I1, ठीक है। फिर इधर आया, एफ तक आया, एफ से ई आया, ई से जब बी जाएंगे तो हम लोगों का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, इसीलिए क्या होगा, यहाँ करंट I इंटू 1 इंटू आई, ये भी निगेटिव होगा। 1 इंटू आई निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव हुआ? क्योंकि हम लोगों का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है। फिर हम लोगों ने जाके निगेटिव प्लेट को फेस किया तो ईएमएफ पॉजिटिव होगा, इज इक्वल टू 0। दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन। क्या मिला है, 15 माइनस आई -2I1 is equal to 0. This is the equation number 1. Now second loop को ले लो, applying Kirchhoff loop rule in the loop। सेकेंड लूप कहाँ से लिया है, बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी। यहाँ से क्या मिलेगा, देखो हम लोगों का डायरेक्शन है बी सी से सी डी डी ई बी, और हम लोगों का डायरेक्शन और करंट फ्लो का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी बॉटम टू रेजिस्टेंस विल बी नेगेटिव। ये टू रेजिस्टेंस का, ये रेजिस्टेंस का अक्रॉस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव? बिकॉज आवर डायरेक्शन इज in the same direction of current flowing in the circuit, so it will be -2 IR है ना, ये तो R हो गया, I क्या है, I माइनस I1। फिर CD गया, CD से DE गया, फिर E से B जाने का समय क्या मिला, -1 इंटू I। फिर क्या मिला, अभी ये जो क्या होगा, नेगेटिव प्लेट को फेस किया है इसलिए पॉजिटिव होगा, +10 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, -2I +2I1 -I +10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिलेगा 10 -2I -I, माइनस माइनस प्लस, -3I हो जाएगा, +2I1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। एंड इफ वी ट्राई टू सोल्व द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ -2I1 है, यहाँ +2I1 है, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 2I1 कैंसल जाएगा। इक्वेशन 1 + 2 करने से क्या मिलेगा, 15 + 10 25, -I -3I क्या हो जाएगा, -4I, और ये -2I1 +2I1 कैंसिल गया, 0 हो गया, इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स 4I इज इक्वल टू 25। 4I को राइट साइड में लेके आया, 25 ऑलरेडी लेफ्ट साइड में था, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25/4।
ठीक है, ये 6.25 नहीं भी लिख पाया तो भी क्या होगा, हो जाएगा, 25/4 एम्पियर लिखने से भी सही होगा। अभी ये 25/4 को हम पुट करेंगे कहाँ, 25/4 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सबसे आसान इक्वेशन क्या है, I1, I1 में पुट कर देते हैं, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा, 15 माइनस I का वैल्यू है 25/4 माइनस 2I1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सोल्व करो, 2I1 वहां चला गया, 15 माइनस 4 एलसीएम आ गया, 60 माइनस 25, I1 क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, 2 इंटू 4, ऊपर में 60 माइनस 25 कितना होगा, 35। ठीक है, 35 को 8 से डिवाइड करने से कितना होगा, 8 4 जा 32, 6, तो ये हो जाएगा 4.375 एम्पियर, और वी कैन राइट 4.38 एम्पियर राउंड फिगर। यहाँ तक नहीं निकालने से भी हो जाएगा, 35/8 एम्पियर लिखने से भी सही होगा। Now our question was not to find the I and I1. Our question was to find the current in the different branches. ठीक है, therefore current in the branch, कौन सा ब्रांच था ये निकाल के देना पड़ेगा। AF ब्रांच में कितना करंट था, देखो AF में करंट क्या था, AF ब्रांच में करंट था I1, सो I1 का वैल्यू हम सीधा लिख देंगे, I1 इज इक्वल टू 4.38 एम्पियर। अगेन current in the branch, ये ब्रांच BE, तो BE ब्रांच में कितना करंट था, I, BE में था I इज इक्वल टू कितना हो गया, I कितना मिला, 6.25 एम्पियर। देन current in the branch, कौन सा ब्रांच है, CD में कितना करंट था, I माइनस I1, कितना होगा, 6.25 माइनस 4.38, कितना होगा, 1.87 ampere. These are the answers. These are the answers. And if you can't find these decimal values, then you can write the fractions and you can subtract the one fraction from one another fraction. So you can write the all answer in fractional form.